Please, what is okay? So, as per your permission, we are recording it. What are your queries exactly? Okay, my queries is to have a demonstration that how I will be like trained and how I will be uh, get the brief on the PT exams. Whereas I have been studying the PT course and I know all the procedure and the thing since more than almost 2 months. In fact, it's 3 months now. So I used to be practice on some portals, and but now first is like I want to understand that where exactly I will be trained on which portal where I have to go and which where I have to practice and how Okay. I will be assured. See, And assurance is that what you perform over there in exam is what you are doing there, right? Our job is to tell you where you are wrong, what mistakes you are doing while you are preparing it. Portals, there are many third-party applications, not that are like AppUni, Guruli, Language Academy, so on and so forth. They provide you a platform, some relevant question sample materials, a huge data bank where you are actually practicing, and then you submit your score, and based on it they give you an analysis where you are wrong, what you are doing wrong. If you are it is divided into different varieties. The exam itself, they check your extended writing, extended speaking, short writing, short speaking, response to the question, reproduction of the questions, and stuff like that. So they give you, like, third party applications give you situations where you answer it to check if you are able to achieve the desired score in that questions. So starting it, you know what it is based on. It's speaking, writing, reading, and listening, and it's all interconnected interfaces, not like IELTS where each module is independent, but here it is not. So, like you mentioned, someone was mentioning there is one line strategy. If you go for one line yes, strategy, it does works for the speaking part, but not for the reading part. So I don't suggest one line strategy. I like tell you a name. Just we will have a small kind of a demo question. I give you a question and you answer it, and it will give you a score. And from there, I can tell where you're going wrong. It's all about you do have the knowledge about the exam, so I don't need to tell you from the scratch. But you are lacking in how to attempt that paper and how to get your desired score, right? This is the main thing. yes, Yeah. So I give you if I give you some questions, you do it here and here, and we will submit it, and it will give you a response. And from there, I can tell that why did you get that score, and what should you do to improve yourself. My main aim will be to help you improve your score, like almost lower or almost end your weaknesses, and try to get you there with confidence that you are can say that yes, now I'm ready to sit for the exam. all right. So I will share a link with you on the WhatsApp, and you, like, for example, okay, let me open a, there is an Uh, uh, yeah, yeah, Ma'am, like, is it would you like to see the the actually I registered with the Language Academy and with the yeah, free yeah, sure, sure, subscription thing. sure, you, sure, sure, So send me your, I have actually, yes, I uh-huh, have actually attempted the speaking thing. So I want to share my screen and sure, sure, sure. just a Let second. me enable you. Yes, please. Okay, can you see my screen? I can. Okay, this is a mock result. I will open one by one for all the things. Or if you any specific you want to see, I will want Go, to go see ahead. all of the sections. Yeah, yeah, go ahead, go Okay. ahead.
Okay. You scored how much? You score with your marks. Could you scroll it down a bit because of the no, no, don't close it. Show it again. Okay, now see you got 64 in content, fluency is 86 fine, and pronunciation is 60. Now, number one thing, why you were not able to get content and pronunciation is because if you're using laptop and these devices usually do not provide that sophisticated environment for the AI to understand you because there might be distortion, there might be noise in the background, might be the laptop might have an echo, and might be the headphones or the earphones you're using might be having some glitches and sound distortions, right? So that's why you are Okay. scoring bad on the pronunciation. That's why if you close this, if you close this, yes, you can see red words. These red words are now. Can you play on the you're recording your response? Yes, This is a dynamic force that shapes. Can you hear the sound? Just tell me. yes, Economies yes. and I societies. can. It embodies the spirit of entrepreneurship driving Stop it. innovation. Pause it. Can you hear the distortion in the voice yourself? No, I There is an cannot. echo. There is an echo. Play it again. Okay. And growth from startups and challenging the status quo to multinational corporations shaping There is a global markets. The there is a sound distortion. It's not clear. Because of that, you are getting these red words. If you go to what I usually do is when I used to practice on laptop, I used to get a lot of red words. When I use cell okay. phone, this is not a good suggestion to give anyone, but because you are not getting a score, so you are losing confidence that maybe you are at mistake and you are just scored 60 out of 90. But if you change the device, if you use the cell phone speaker is kind of better than the laptops because when we talk to another person, they don't hear a distorted voice, they hear a very clear voice. So if you perform the same question on your cell phone, you will realize that you're getting better score because why? There won't be any distortion in your voice. So because of that, we were doing on laptop, it was echoing and you was getting red marks on it. Uh, okay. Two things. I need to check if it works on like the link works on the this link works on the cell phone, and It because will. this is a Uh, okay, and this is it's a like a free version, so it will not repeat option again. So I need to buy that subscription later on. I give So, you but I give you a link to another to App Uni. It also gives you 5 free coupons to practice speaking. So you can speak. Let's go step by step. First, I send you the link. okay, You open it. yeah, and in App Uni, if I create a registration, new registration, so it will also provide me five tests for the new No, no, registration they give you 40 tests. They give you 40 tests. initially for the free subscription. Yeah, no, not for free. They give you 5 coupons. Like if you perform one read aloud and they give you 5 coupons and they will give you the analysis for 5 analysis for free for speaking. For Uh, anyone who is registering the App Uni. yeah, login. If you login, yeah, Okay, register okay, and okay, login. If you buy the okay, VIP subscription, it is around 6,000, $15, I guess. Then you get 40 mock test for free. So let me send you the. Can you sure, stop sure. sharing because I cannot move the screen Actually, I want your more time to show some more questions in that, if you allow. because speaking, I'm telling you what is happening. Okay, let's move to another one. Yeah, No, just all we'll have a speaking. we'll have a quick look on it. Sorry. So We will have a quick look on it. one by one, it's the same situation. See, all red. So it will be very time Mm. consuming that I go through one and one questions, each question one at a time. See, same situation. If you can see this, Pronunciation. the result. Yeah. See the Mm. pronunciation again in 60s, and you can see the red thing. Close it. Okay, Okay. let me come out from this thing. There's actually one more thing I want to share with you. Mm. Uh, just a second here. One thing I want to show this thing just for your just quick look.
Uh-huh. This is just a speaking result, okay? Yeah, you did one And module, huh? yes, and another thing is this is the percentage wise things which for each sections and speaking. No need to go Okay. through percentages because PT doesn't show your percentages. They just give you a generic. No, no, Just I'm just want to show by where I'm standing. Maybe it will help you because if we show go only further, those things which actually the PT shows you in their results, right? okay, so you don't need to see all these things. मतलब वो चीजें दिखाएं जो पीटी खुद आपको एक फीडबैक पे देता है। हम इनसे इनको दुरुस्त करके फायदा नहीं है ना, हमें वो दुरुस्त करना है जो असल में पीटी ही दिखाता है आपको। ओके। मुझे एक्चुअली पीटी का एक्चुअली नहीं पता, क्या वो मैंने मॉक टेस्ट आप पियर्सन का नहीं नहीं मॉक किया। नहीं, रियल एग्जाम तो दिया है। नहीं ना, मैंने रियल एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने अभी तक So, फाइनल so, अटेम्प्ट yeah. नहीं किया। So just the response that that you showed me, which was 68, that is enough to show to me, and Mhm. you were showing something else. Yeah, actually, I was trying to show the other than read aloud thing. If you want to have a look, or you You later we can see No, for speaking, other than read can aloud show thing. for speaking, you can show me the all questions. You was just showing me the percentages, na? That was not needed because uh that is not Okay. important. Yeah. You can show me the other questions, but not the percentages that you were showing, that this is this percent and this is this percent. That is not important. That is not important. Absolutely. Okay. Okay. This is repeat sentence. Hello. 1 minute. Okay, you show me the show score, view score. Still, your content, your fluency, and your pronunciation again is the same issue because they weren't able to understand you. And could you play your video, your sound note? A radio signal both has magnetic and electric properties. And what was the question audio? Play the question audio. A radio signal normally has both electrical and magnetic properties. And see, so your red shows that it is an echo. Listen to it again. A radio signal both has magnetic and electric properties. Electronic and electric properties. And so Yeah, I you, just missed that thing. I uh, will show you the some better version actually. That was yeah, not the yeah, good sure, one. sure. I would prefer that you show me the better version. बेहतर को और बेहतर करना है. Right. Okay. Uh, छोटा वाला था ना वो सही था. Yes, this one maybe. You will be able to integrate you will be able to integrate digital media with your study. Integrate digital media while study. You will be able to integrate digital media while study. अच्छा, विद योर तो इसलिए रेड है, वो मैंने बोला नहीं है, और इंटीग्रेट आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ. दोबारा बोले. You will be able to integrate digital media while तो study. जल्दी बोलने के चक्कर में आपने प्रोनाउंस ही सही नहीं किया. You fumbled also, and you didn't say the whole word properly. Just listen yourself. Yeah, but like I cannot be 100% right in the repeat standard. It could be like 70-80% I can do maximum, I guess, so far. But if you want to score for 79, see, if you prepare, if you give 100% from yourself, you will be making some mistakes. There you might lose 5 marks.
and AI might not be able to understand you. There you will be losing 5 more marks. So 5 plus 5 means 10. So if you like, you are providing yourself just 60% of the content. Do the calculations yourself. अगर आप पूरा उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कुछ गलतियां आपसे हुए होंगी, कुछ एआई आपको समझ नहीं सकेगा, तो फिर पीछे बचता क्या है? अगर आप 70-80% कर रहे हो और 5 और 5 10 मार्क्स तो चले गए, पीछे 70 बचा। फिर so नहीं, when मेरा you go एक्चुअली पॉइंट ये था 79, कि when you go जो for एक वर्किंग 79, मैम। आप उसको पूरी प्लेट भर के देंगे तो उसमें से कुछ अपनी पसंद से वो खाएगा, कुछ छोड़ेगा। तो उस हिसाब से ही उसका पेट भरेगा। आप उसको जो है वो नो, क्वालिटी चीज प्रोवाइड करोगे। नो, व्हाट आई एम सेइंग मैम, यही मेरा प्रॉब्लम शुरू से आ रहा है कि देखें, एक वर्किंग मेमोरी होती है जिसमें एक उसका हल 8 ये वर्ड है, 10 वर्ड। द सिचुएशन, द सॉल्यूशन टू इज इट, कि आप उसके साथ साथ बोले, जब वो व्हेन द स्पीकर इज स्पीकिंग, लिसन एंड आल्सो राइट द इनिशियल्स। हर लफ्ज का पहला लेटर लिखते हैं आप। ये शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, मगर विद आई अश्योर यू हैव डन द सेम थिंग, विद प्रैक्टिस आपकी आदत हो जाएंगी। उससे क्या होगा, तो जब जब आप लिख रहे हो तो साथ साथ मेमोराइज तो करना ही करना है, साथ में जब आप इनिशियल्स लिखोगे वो आपको हेल्प करेगा, काइंड ऑफ मेकिंग नोट्स। तो फिर आपको याद रहेगा, ये भी याद रहेगा कि उसने किस सीक्वेंस में जुमला कहा। ये लेटर पहले कहा था, फिर ये कहा था, फिर ये कहा था, फिर ये कहा था। और ये भी आपको हेल्प करेगा कि उसने लफ्ज क्या कहे थे। उससे पहले जो आपने मुझे इलेक्ट्रिकल सुनाई थी, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इस तरह का था और आपने कहा कुछ और हुआ था। अगर आप इनिशियल्स लिखोगे तो फिर वो आपको याद रहेगा कि उसने कौन कौन से लफ्ज कहे थे। इनिशियल्स मीन जस्ट राइटिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, एंड अच्छा, आई हैव ट्राइड बोथ दैट वेज, will लाइक that will also आई help हैव in writing from dictation. अच्छा, आई हैव यस एग्री। मैंने ये प्रैक्टिस की है, मतलब काफ़ी दिनों तक की है, एक तो साथ बोलना और लिखना भी। बट मैं स्टिल, वो शायद मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं वो नहीं कर पाया अब तक हो उस चीज़ जाता है, को हो जाता है, मेमोराइज। because what I used to say do is, while the speaker is speaking, I used to write the initials and also keep repeating it along with writing. दिमाग में भी बोल रही होती थी और इनिशियल्स भी साथ साथ लिख रही होती थी। इनिशियल मीन्स 2 वर्ड्स, राइट? टू इनिशियल्स वर्ड का फॉर द। मतलब ये है कि हर हर जो लफ्ज वो बोल रहा है उसका पहला, जैसे आई एम शुमाइला, तो आई का आई, एम का ए, शुमाइला का एस, इसको इनिशियल्स कहते हैं। फर्स्ट यस, लेटर। मैंने तो 2 वर्ड से भी ट्राई किया था, क्योंकि एक वर्ड पे तो बिल्कुल याद नहीं रह रहा था। नहीं, वर्ड कुछ और होता है, लेटर कुछ और होता है। लेटर का मतलब होता है पहला नहीं, नहीं। आर्फ। जी, जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने लेटर, वर्ड का लेटर जो इनिशियल्स होते हैं ना, मैंने वही मैं कर चुका हूँ ये। एक एक लेटर करके भी किया था, फिर वो बिल्कुल याद नहीं हो रहा था। देन आई ट्राई टू डू बाय 2 वर्ड्स, 2 लेटर्स। तो उसमें नहीं, मतलब मैंने ट्राई किया, बट वो नहीं हुआ है, बट आई ट्राई अगेन। Yeah, आई it's ट्राई not अगेन। impossible, क्योंकि मैंने ये I gave a target myself that if any other person can do it, I can do it too. So you have to set a goals mentally also. This is ओके, all एंड exam. रफली हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट इट परफेक्ट, अगर एक आवर्स के हिसाब से और दिन के हिसाब से अगर कोई आइडिया दे सकते हैं कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स? 1 month is for preparation and 1 month is like you do it for mock complete mocks. आप खुद 1 महीना सिर्फ रफली प्रैक्टिस करें इंडिविजुअल क्वेश्चन को, वहाँ पे इम्प्रूव करें। फिर आप 1 महीने में मॉक की जरूरत नहीं है, लाइक 15 days, लाइक यू डू 2 mocks daily. So the time you reach your desired score, you see that yes, you have come to that desired score, and like you have given 5 consecutive exams and you're getting the same score like 80 in each, then go for it. For me, for 1 month I used to do individual questions, जिन जो मेरे मुझे समझ आ रही थी कि मैं ठीक कर रही हूँ, उनको मैंने थोड़ा उनकी प्रैक्टिस कम की थी, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे पता था कि मैं बहुत वीक हूँ, उनको बहुत प्रैक्टिस की ताकि ठीक हो जाए। जब मेरा एक डिजायर्ड स्कोर आना शुरू हो गया इंडिविजुअली, तो फिर मैंने मॉक देना शुरू किया। So initially in mock I got 70. Then I gave another mock. I said no, next time I have to do more. 72 तो आए आए मेरे। फिर 72 आए, फिर 75 आए, करते 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 मैं 80 को टच कर लिया था। So the time I touched 80, I was confident. Okay, now मैंने अपनी सारी गलतियां ठीक कर दी हैं। अब मुझे गलतियां सुधारने की जरूरत नहीं, अब मेंटेन करना है स्कोर को। So I gave 4 to 5 mocks to maintain whether I really am getting 80s in it. 5 4 5 में जब मेरे So 80s you, आना शुरू हो गए, तो फिर मैंने टेक्स्ट बुक किया। hmm. So you got 80 in each module or overall 80? Alhamdulillah, 80 above, 80 above in each module.
ओके, अच्छा मैं लाइक 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या अब मजीद 1 महीना देखिए, और मुझे प्रैक्टिस करना लगेगा? और सही प्रैक्टिस करना और अपनी गलतियों को, मैं भी प्रैक्टिस करती थी, अगर मैंने देखा अच्छा मैं एक चीज को फॉलो कर रही हूँ वो इस तरह नहीं आ रहा, तो स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। सही प्रैक्टिस, क्वालिटी प्रैक्टिस करना और क्वांटिटी प्रैक्टिस करना दो अलग चीजें होती हैं। सही, ट्रू। ठीक है। Okay, I want to show this describe image, हाँ, and if you want to see the और इसको score. फ्लुएंसी आपकी क्लोज करें, और मैं बताऊं, सुनने से पहले मैं ये बता सकती हूँ आपके फ्लुएंसी के मार्क्स क्यों कटे। आपने नेचुरल पोजेस नहीं लिए होंगे, रिपोर्ट की तरह बोला होगा। क्लोज करें और प्ले करें, यही हुआ होगा। क्लोज करें और अपनी रिकॉर्डिंग और प्ले करें। रिपोर्ट, नहीं तो रिपोर्ट की तरह तो बोलना होता है। नहीं, ये अच्छा किसने बोला? जी नहीं, नेचुरली बोलना होता है, यही तो गलत फहमी है लोगों की। प्ले करें। यू आर अच्छा, नॉट। नकुल तो यही कहता है। नहीं, रकुल ये अच्छा। कहता है कि आप ट ट ट ट करें, ये ना बोले कि कहीं पे पिच हाई कर रहे हो। अनोटेशंस नहीं होनी चाहिए। यानी कि आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग, तो दो अलग टोन्स हो गए ना। उसका कहना है कि आप एक रिदम में बोलें। वो ये नहीं कहता कि नेचुरल पोजेस ना करें। मैंने भी नकुल को फॉलो किया, मैंने भी उसकी वीडियो सुनी है। आपने उसकी बात गलत परसीव की है। प्ले करें। There's a picture in front of me. I have got 40 seconds to talk about this picture. Let me have a closer look at this picture. और After having a closer look, I can see different trends. पोज करें। नेचुरल पोज कोई है? नहीं है ना। राइट। सो दिस शोज दैट यू आर नॉट टॉकिंग नेचुरली। एक इंसान को जिस तरह बोलना चाहिए। अब ऊपर गिरे, मैं उसको पढ़ती हूँ पिक्चर को, मैं, आप सुने मैं कैसे पढ़ूंगी। ठीक है, मुझे एक सेकंड दे दे, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा देख लूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एवरेज एनुअल बर्न acreages by state in 1984 to 1920 on the west there is the highest rate of burning। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा वो बड़ा कर सकते हैं? ये जो लाइन नीचे लिखी हुई है, स्टेट्स क्या? हाँ, स्टेट्स राइट States colored light gray did not have any fires that were fires. large enough to be included। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा पंबल करूंगी, ठीक है, मगर आप टोन सुने मेरा। हियर इज इन, थोड़ा बड़ा, ठीक था, वो बड़ा करें, जूम करें, मैं नजर तो आए थोड़ा। ठीक है, ठीक है, गुड। Here is an informative picture in front of me. It is about average annual burned acreage by state 1984 to 2020. I can see that on the western sides of America, there is a lot of high range of burnage from 4, 5 to 6 states. I can see on the east side, the ratio is comparatively less, that is just between 0 to 1. I can see in the mid of the states, there isn't any state which has gone through any kind of burnages. That is because the fires that were large enough to be included in this analysis has never occurred there. In conclusion, it is a very important picture. तो मेरे, मैं भाग रही नहीं थी। मैं तस्वीर को देख रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ, अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, और कोशिश की कि जो जो तस्वीर में नजर आ रहा है वो भी पढूं। ग्रे एरिया भी मेंशन, जो जो लफ्ज उसमें लिखे हुए हैं वो भी मैंने पढ़े, जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो भी मैंने पढ़े। आई वॉज ऑन रनिंग, आई वॉज टेकिंग नेचुरल पॉजेस। ठीक है। Okay. और आपने नीचे जो मैं कंटेंट कह रहा वो कह रहा है कि आपने सही प्रोवाइड किया। In seconds, talk about just a year. Have a closer look at the picture. After having a closer look, I can see different trends I am measuring in this picture. I can see average annual burns per stage with 1994 to 2020. I can see a scale of 0 to 1, 3, 4, 5, 6। I can see yellow, orange and ठीक है, मगर ये था, मगर ना असल में what Pearson asks you that you make a story out of the picture। ठीक है। उसके जैसे किसी को आप ग्राफ समझाएंगे तो आपने तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की चीजें बता दी, पर कौन सा किसका कहाँ लिंक है, यू आर एंट एबल टू टेल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू, व्हेन यू गेट अ पाई, in pie it is divided into different sections, see, right? So हर पाए में, हर सेक्शन में पहले उसमें नाम लिखा होगा, फिर उसकी परसेंटेज दी हुई होगी। फिर जैसे डॉग्स 10%, कैट्स 15%, काउस 11%, तो वो दो चीजों की लिंक दे के बता रहा होता है, फ्रेज भी बता रहा होता है, वर्ड भी और परसेंटेज भी। इसी तरह अच्छा, कहानी। मैं इसमें एक चीज उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि अच्छा मुझे एक तो चीज़ ये बता दें, क्योंकि लाइक वी आर फर्स्ट टाइम डिस्कसिंग, सो आई डोंट नो क्या क्योंकि एक होता है ना, एक आप बोल रही होती हैं तो मैं इंटरवीन कर सकता हूँ, या शुड आई वेट फॉर यू टू स्टॉप? while I'm teaching you here, या मैं वो ग्राफ पढ़ रही हूँ तब? नहीं नहीं, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो।
जो मैं आपको मतलब गाइड करूँ। जी जी, तो मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ ना, मैं पूछ सकता हूँ, कोई इशू तो नहीं है। इंटरवीन कर सकते हैं, फिर बेहतर है कि अलाउ मी टू फिनिश, हो सकता है कि मेरी बात खत्म होते होते आपके सवाल का जवाब मिल जाए। हाँ, लेकिन मैं जब तक भूल भी जाता हूँ ना, आप इतना लंबा गाइड कर रही होती हैं। अच्छा। अच्छा है, आपके बेनिफिट में है ना। मैं फिर भूल जाता, मेरी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये जितना भी आप ये टेम्पलेट देख रही हैं और प्रीवियस जितना आप देखा ना, तो लाइक इट्स बीइंग 3 months आई एम, यू विल फील द impact or influence of the English wise where I being taking classes, where I took the format and where I being practicing all the things. तो मुझे जो एक डिफरेंस नजर आ रहा है अब तक, जैसे आपने जो बोला वो एग्जैक्टली लाइक वी वर डूइंग इन द इंजीनियरिंग, और आप माशाल्लाह शायद यू आर अ पीएचडी, तो हम्म। वो पूरा एनालिटिकल और जैसे एक इंटेलेक्ट पर्सन बात करता है, एक्सप्लेन करता है नेचुरली, आप उस तरह कर रहे हो। बट वी आर एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली मुझे शायद बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग वी बीइंग डायरेक्टेड टू रट्टा वाला थिंग, कि भाई इसको रट्टा फॉर्मेट को कर लो, और इसको सारे फॉर्मेट्स को और सारी चीजों को इस तरह अटैम्प करना है आपको। तो अब आपको ये पूरी मेरे टेस्ट में ही नजर आएगा कि मैं इस हाँ, तरह वो अब इसलिए। याद कर चुका हूँ और उसको प्रैक्टिस कर चुका हूँ। हाँ देखिए, अच्छा आप, मैं आपकी बात को ना कंटिन्यू में कहूंगी, वो बात गलत नहीं है, प्रैक्टिस कर चुके हैं। मगर मसला क्या है कि लोग जब टेम्पलेट याद करते हैं तो वो टेम्पलेट ही बोल लेते हैं, टेम्पलेट बोलते बोलते आपका आधे से ज्यादा टाइम निकल जाता है। पियर्सन ने आपका टेम्पलेट आंसर की में नहीं लिखा हुआ, आंसर की में उसने वो लिखा हुआ जो तस्वीर के अंदर है। मैंने जो पढ़ा आपको कहीं टेम्पलेट नजर नहीं आया होगा। ठीक है, मैंने सिर्फ पहली लाइन टेम्पलेट की थी, हियर इज एन इंफॉर्मेटिव पिक्चर, और सिर्फ आखिरी लाइन मैंने टेम्पलेट की इन कंक्लूजन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। ठीक है, बाकी मैंने जो भी तस्वीर में था वो पढ़ा। पियर्सन ने अपने ऐसे ही। सवाल का जवाब, जो तस्वीर में चीजें हैं वो उसका आंसर है। बस आपने उसको फ्लुएंसी से, कॉन्फिडेंस से पढ़ना है बगैर। अब टेम्पलेट का मसला क्या है, टेम्पलेट पढ़ते 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 आपके 15-20 सेकंड चले गए, पीछे टाइम बचता ही नहीं है कि आप कंटेंट पढ़ो। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, वो टेम्पलेट पढ़ने के चक्कर में लोग, वो होता है कि किसी तरह मैं पढ़ लूँ तो वो भागते हैं। भागने में आपके लफ्ज प्रोनाउंसिएशन में नहीं, वो नहीं होता। ठीक है, टेम्पलेट, तीसरी बात, टेम्पलेट इसलिए है कि जी वो जैसे मोइन अख्तर का जोक है ना कि मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो आप स्ट्रक्चर तरीके से नहीं बोलोगे, आप इधर इधर इधर, यहाँ से एक बात पकड़ रहे हो, यहाँ से बात पकड़ रहे हो, वहां से पकड़ रहे हो, इसलिए टेम्पलेट दिया जा रहा है। मगर अगर आपको एक दफा जो है वो ग्रिप आ गई कि मैंने जुमला कौन सी लाइन पहले बोलनी है, फिर मैंने क्या बोलना है, फिर मैंने किस तरह उस पूरी तस्वीर को लेके चलना है, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आप टेम्पलेट नहीं याद करते हो, आपने जो इंजीनियरिंग की बात की। तो ये हम्म। चौथी बात, टेम्पलेट इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी ग्रामर वीक है, वोकैबलरी कम है, और या वो 65 एम करना चाह रहा है, तो वो सिर्फ टेम्पलेट बोल देगा, उसको मार्क्स मिल जाएगा। बट यू आर एमिंग फॉर 79, तो टेम्पलेट इज नॉट द आंसर। आपको कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो तस्वीर के अंदर है। आपने बिल्कुल ठीक कंटेंट प्रोवाइड किया है, मगर वो इतना जल्दी थी आपको वो पूरे पढ़ने की कि आपने नेचुरल पॉजेज नहीं लिया एंड यू आर रनिंग, और उसमें आपके फ्लुएंसी के मार्क्स कटे। ये आपके सामने स्कोर कर। बिकॉज वी वर आस्क्ड टू डू लाइक दैट, कि वो आपको कंटिन्यू में फ्लुएंसी में ही पढ़ना है। नहीं, नकुल की वो वीडियो आप दोबारा सुनिएगा, वो क्या कह रहा है, दोबारा सुनिएगा। नहीं, नकुल को तो मैंने पर्सनल देखा था, लेकिन हमें इंग्लिश वाइज में जो क्लासेस मिली और गाइडेंस मिली ना, उसमें इस तरह कहा गया था। बट ये नेवरदलेस मुझे एक बात बताएं, इस कंटेंट के ऊपर रहते हुए मैं कहाँ पॉज ले सकता हूँ, या नेचुरल, अगर इसी को नेचुरल आपका तक नेचुरल करके पॉज पढ़ूँ? इसलिए, आपका जो टेम्पलेट है उसमें भी तो फुल स्टॉप होंगे ना, तो ये थोड़ा सा ये तो मेमोरी में रखे कि कहाँ फुल स्टॉप था। जस्ट अ सेकंड, या लेट मी थिंक, listening, speaking. मैंने एक नोटपैड खोला है, पोस्टेड, कैन यू सी देख दैट? ली, हाँ। जैसे जी, आप ये ये देखिए है एक्चुअली। ना, जस्ट सी, रुके रुके, मुझे खुद पता है, आई हैव 40 सेकेंड्स टू टॉक अबाउट दिस पिक्चर, इसने अच्छे खासे आपके 3-4 सेकेंड्स ले लिए। क्या आपको लगता है पियर्सन ने ये आंसर लिखा होगा? फिर लेट मी हैव अ क्लोजर लुक एट दिस पिक्चर, आपको लगता है पियर्सन ने ये आंसर की में लिखा होगा? आई हैव अ क्लोजर लुक, आई कैन सी डिफरेंट ट्रेंड्स आर इमर्जिंग इन दिस पिक्चर, आपको लगता है कि पियर्सन ने ये अपने आंसर की में लिखा होगा? 3 वर्ड पियर्सन ने जरूर अपने आंसर की में लिखा होगा, मैक्सिमम, मिनिमम एंड कंक्लूजन। आप अगर आप मतलब बोले कि मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है, और इन कंक्लूजन ये है, ठीक है, तो ये 4 लाइनें तो एक्स्ट्रा हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दें, क्या पियर्सन ही आंसर की में लिखे होंगे ये 2 लाइनें शुरू में? नहीं, देखें, बात यह है कि जैसे मैं आपसे आज सेशन ले रहा हूँ, मैंने इस तरह के सेशन पहले लिया किसी और से, तो वो जो मुझे इंस्ट्रक्ट करेंगे
तो मैंने तो वो परसीव किया और मैंने वो अटेम्प्ट किया। हाँ, अच्छा, मगर आप एक दोनों कॉमन सेंस। आप पे लिया था उन्होंने, खुद भी टेस्ट अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, किया। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, मैं 3 महीने तक उनके साथ इतना इंटरोगेट और इतना काउंटर मैंने किया कि ये किस तरह है, क्यों है। तो उन्होंने कहा यार आप सवाल जवाब नहीं करें, जो कहा जा रहा है जो दिया जा रहा है उसको आप कॉपी कैट करके यही करें। नहीं, मेरे तो साथ भी यही था। जब मैं प्रैक्टिस करी थी, मैं भी कोचिंग सेंटर जाना चाह रही थी, आई वाज सो डेस्परेट। पर मैंने एक से आपसे पूछ, मैंने ना उसके जब डेमोस लिए तो आई वाज शॉक्ड कि वो क्या क्या रहा है, कर क्या रहा है। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा, आपने कभी टेस्ट दिया? एक साहब ने कहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं दिया। मैं कह रहे फिर भी मेरे बच्चों के 90 आते। मैंने कहा आपने कब्र का हाल तो आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो? सेकेंडली नहीं, जब इन्होंने मैंने तो हमें दूसरी, टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाई, इन्होंने तो टेस्ट दिया था बकौल उनके। अच्छा, दूसरा मैंने एक साहब से पूछा आपने लास्ट कब दिया? कहते 4 साल पहले। मैंने कहा हर 6 महीने तो ये चीजें चेंज हो रही हैं, आपने 4 साल पहले दी। यस। यस। तो ठीक है। तो और दूसरी बात, सबसे बड़ा क्रिटिक इंसान को अपना खुद होना चाहिए। तो वो मैं आपको कितना भी समझा दूं, मगर आपको कुछ कुछ चीजें आपको भी पता होंगी। जैसे मैंने इनिशियल्स बताया, बट आपने कहा आप इनिशियल्स नहीं कर पाते। बट सिस्टरली एडवाइस है इनिशियल्स की तरफ जाए, क्योंकि आपने खुद में देखा क्या वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे जो वो कह रहा है, और उस पर मार्क्स कटते हैं। एक साहब को मैंने देखा, उसको बहुत अच्छा आया, सब में 80 अबव थे। स्पीकिंग में जो 70s के आए, सिर्फ इसलिए कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सका प्रॉपरली। ठीक है, तो सही। क्वालिटी जो है वो करें, प्रैक्टिस करें, ना कि क्वांटिटी प्रैक्टिस करें। तो इनिशियली सिर्फ अपनी जो है वो गलतियां सुधारें, फिर मूव करते रहें। ये दूसरा है उसके डिस्क्राइब इमेज का दूसरा क्योंकि क्वेश्चन। अभी भी आपकी थोड़ी फ्लुएंसी टूटी है, कम हुई है। अच्छा, मुझे मैं एक चीज़ पूछ रहा था, अगर इसी कंटेंट को अगर मैं, क्योंकि याद किया हुआ है, और मैं पॉज दे के नेचुरल तरीके से अगर ट्राई करूं तो वुड इट वर्क? वर्ड शायद इसमें। वर्क, बट यू विल रन आउट ऑफ टाइम। और आप टेम्पलेट तो शायद पढ़ लेंगे, पर उसको जो उसको चाहिए वो आप उसको प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसको वो चाहिए जो तस्वीर में उसको नजर आ रहा है, वो उसने अपनी आंसर की में लिखा है। ठीक है, नहीं, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, बिकॉज देखें ट्राई कर थ्री ले, एलिफेंट्स ट्राई कर ले। हैं। इट्स अ फ्री हैंड, आई गिव यू। वही मैं कह रही हूँ ना, अपना क्रिटिकल, आप ज्यादा खुद को समझते हो कि मैं किस तरह परफॉर्म कर सकता। सो गिव इट अ ट्राई। हम्म। करे, आ रहा है तो गुड है, कीप दैट थिंग विथ यू। और अगर नहीं आ रहा तो फिर स्ट्रैटेजी चेंज करे। मेरा भी ऐसे था, मैंने कुछ चीजें नुकुल की फॉलो की, कुछ चीजें मैंने वरुण की फॉलो की, कुछ चीजें मेरे फ्रेंड ने गाइड की वो फॉलो की, कुछ मैंने जो है वो मेरे कोलीग्स को मैं हम्म। वो ओ ए लेवल्स उन्होंने किया हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा आप ऐसा ना करें, ऐसा करें। कुछ मैंने उनकी की, तो जो चीज मुझे सूट बैठती थी, डिफरेंट वैरायटी से मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। जहां मैं देखती थी ना यहाँ मेरा स्कोर अच्छा है, वो स्ट्रैटेजी मैं अपने पास रखती थी। हाँ, दैट्स राइट थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जहाँ क्लिक कर रहा होगा, अदरवाइज आप मुझे वो फॉर्मेट या टेम्पलेट बता दीजिएगा तो हम वो फॉलो ठीक कर है, लेंगे। टेम्पलेट वी आर मैंने बी कोई गेटिंग फॉलो द ही नहीं स्कोर। किया ना। टेम्पलेट आपके सामने मैंने कैसे पढ़ा? कोई टेम्पलेट आपको नजर आया कि मैंने कुछ फील हुआ कि वो आई टेम्पलेट? मीन, आई विल डू द सेम थिंग विच वी आर बी गेटिंग द स्कोर। अच्छा, दिस इज द सिंपल थिंग इज कि जो तस्वीर में है वो बोलें, विद फ्लुएंसी बोलें, Hmm. प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलें, विद नेचुरल पोजेस में, that's it। Okay, now this is a retell lecture. ये इसका टेम्पलेट था और ये इसका टेस्ट थिंग है। अच्छा, यहाँ पे ना कीवर्ड नहीं यूज करते, फ्रेजेस वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, अच्छा, अगेन वो पढ़े यही या मैंने भागे नुकुल की होंगे? वीडियो फ्लुएंसी है ना, भागे होंगे, पढ़े वो प्ले करें, लेकिन मैंने नुकुल की वीडियो से ही ये प्रैक्टिस किया था कि कीवर्ड नहीं, पूरा फ्रेजेस यूज करें। मगर आपने भागे होंगे ना, प्ले करो। The lecture is about safety in the aeroplane. The speaker told about it is important to staying hydrated while staying in the flights. Flight increases the risk of कहाँ पोज, कहाँ है hydration. पोज? The किधर speaker है? told about वेयर इज द पोज? ठीक है, देयर इज नो पोज। हाँ, लेकिन मैं भाग तो नहीं रहा, लाइक भाग रहे जस्ट। हो मतलब, पोज का मतलब ये, भागने का मतलब ये कि नेचुरल पोज नहीं दे रहे, रुक नहीं रहे। ओके। देखिए जो कोमा होता है ना, अब आप क्लिक सुने, ये क्लिक सुनाई दी जो मैंने टैप किया है, कोमा के लिए इतनी पोज लेनी पड़ती है। और अगर फुल स्टॉप है तो जितनी देर टैप हुआ है ना, इतनी आपको पोज लेनी पड़ती है। इसको नेचुरल पोज कहते अच्छा, टैप मैंने नहीं सुना, दोबारा प्लीज करें। हैं। बस एक एक जो आप नॉक करते हो ना, एक वो एक नॉक जितनी जितनी देर लगती है, वो आपका कोमा के लिए पोज होनी चाहिए इतनी देर के लिए। और जितनी 1 2 3 नॉक्स आप करते हो खटखटाना, उतनी पोज जितनी देर लगती है, 1 2 3। अच्छा, नॉक कह रही हैं आप, नॉक। ओके। हाँ, या ओके। काउंट करना, 1
जितनी देर वन बोलने में लगी इतना कॉमा जितनी पोज होनी चाहिए, या 1 2 3, इतनी आपकी अब मैं इसको फुटवर्क। इस्तेमाल कर लेता हूँ। हम लोग जब मस्जिद में जाते हैं ना, तो जमात ज्वाइन करते, तो अक्सर जो है वो रुकू में फौरन नहीं जाना होता है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के, आपको थोड़ी देर क़याम करना होता है, तो इतना क़याम एग्जैक्टली, करना होता है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, एग्जैक्टली, कि आपको वो एग्जैक्टली। कि वो क़याम तो क्योंकि मैंने ये चीज फर्ज मैंने अदा। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, मुझे अभी भी याद है कि ये बात हमें प्रेप में बताई गई थी, कि जब हमें रीडिंग प्रेप से स्टार्ट करा दी गई थी, एवरी मंडे एक पीरियड होता था रीडिंग का, उसमें हमें बताया गया था कि कॉमास एंड फुल स्टॉप पे आपने इतनी देर रुकना है, तो मुझे वो अभी भी चीज याद है। ओके, सही है। इसको अच्छा, नेचुरल मूव फोर्स ऑन कहते टू। हैं, इसको भागना वो होता है, ये आप भागो नहीं। ऑलराइट। बाकी ये तो वर्ड क्वेश्चन, ये तो वो है आईक्यू है, मैं वो चीज़ें हैं तो उसमें तो। ये आई किसने कहा आपको आईक्यू है? यही तो गलती है, लोग ये समझते हैं कि आंसर शॉर्ट क्वेश्चन से ही है। नहीं तो आप देखा ना, ये जो आईक्यू, क्वेश्चन कर रहे हैं ऑर्थोलॉजिस्ट, ये तो मेरे मतलब बड़े बड़ों को नहीं आईक्यू, पता होगा ये। आईक्यू यही तो है ना, ये आईक्यू नहीं है, वो आपकी जनरल नॉलेज नहीं चेक करे, वो ये देख रहे हैं कि आप रिस्पॉन्स किस तरह करते हो, अगर कोई चीज आपको आती है या नहीं आती। आप वहां जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आपसे कोई बात कर रहा है, आपको उसको पता है या नहीं पता। सिंपल, अगर जो आंसर आता है उसको बोलते हो, जो नहीं आता तो उस सवाल को रिपीट कर ले, मतलब एक फ्रेज प्रोवाइड कर दें उसको, कि नहीं अगर फॉर देखिए, मुझे एग्जाम्पल। सवाल नहीं आता था, बट जवाब नहीं आता था, लेकिन मैंने कंटेंट राइटर बोल दिया, बट आंसर तो गलत है ना। ये गलत कह रहा है ना, मतलब ये था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ हु इन्वेंटेड द पेन, हम्म। जवाब दे मुझे। पिकासो। ठीक है, अब वो आपके जनरल नॉलेज नहीं चेक। आंसर गलत है, लेकिन मैंने जवाब दे दिया। गलत दिया है ना, आप फ्रेज बोलो। द पेन वॉज इन द पेन वॉज इन्वेंटेड बाय पिकासो। तो आपने, अब पिकासो तो है ही गलत, आपने उसको दी, एक ही टॉफी दी, वो बच्चा तो खुश हुआ नहीं, आप उसको थोड़ी सी ज्यादा दे, उनमें से हो सकता है वो थोड़ा सा खुश हो जाए। तो जो कंटेंट उसने बोला है वही आप उसको प्रोवाइड करें, उसने सवाली अंदाज में बोला, तो आप इसके विल थ्रू इट बी, बोलो। लाइक वो मार्क्स उसके मिलेंगे अगर आंसर हाँ, गलत होगा तो भी हाँ, कंटेंट? हाँ, उसी को अच्छा। मिलते हैं। आपको क्या लगता है मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे वहां पे? इतनी मेरी अच्छी जीके थोड़ी है। आप, मैं तो फाइनेंस की पीएचडी हूँ, और सवाल तो पता नहीं क्या क्या पूछ रहे, तो फॉर एग्जांपल एक सवाल आया था कि आ, मतलब यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट। मुझे तो नहीं पता, तो मैंने कहा द यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ अ सर्कल इज समथिंग टू डू विद द सेंटर। तो मैंने एक फ्रेज बोल दिया, तो मैंने यूनिवर्सल सर्कल, दो लफ्ज तो उसको प्रोवाइड किए हैं ना। आपने एक तो लफ्ज वो आपके प्रोवाइड आंसर, किया, आपने एक लफ्ज प्रोवाइड किया, वो भी गलत। नहीं लेकिन वो आपके आंसर शीट में कहीं शो होता है कि वो आपको उसका क्या, आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला कभी, इस हाँ, तरह ये चेक? पीएसएम जो है वो बताता है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में वो बताया, वो ब्लू करके टिक आती है। असल में ना मेरा एक और सेशन तो मैंने स्केड्यूल किया हुआ है, तो मैंने उसको टाइम दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम क्विट कर रहे हैं? हाँ, वेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, आप ओके। एटलीस्ट ये दो चीजें तो ठीक करें ना, रीड अलाउड मैंने आपको बता दिया, डिस्क्राइब इमेज मैंने आपको बता दिया, और रीडर लेक्चर। ये मेन चीज है जो आपके 30% पेपर्स के बनाती है। ये तीन चीजें ठीक करें, फिर मुझे बताएं आपका इफेक्ट आया कि नहीं। अच्छा, ये जो आपने रिकॉर्ड किया, इज इट पॉसिबल आप मुझसे शेयर कर सकें ताकि मैं उसको रेफर कर सकूं हाँ, मैं व्हाट्सएप कर अपने दूंगी, लिए? व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, और वो जो आप लिंक भी कह रही थी ऐप यूनी का, वो भी प्लीज दे दीजिए ताकि मैं प्रैक्टिस पर कर लूं। बस आप किसी एक अकेडमी को लेके चले, या आप यूनी को लेके चले, या लैंग्वेज अकेडमी को लेके चले, मेरा ये मानना होगा, सिस्टरली एडवाइस। नहीं, ये तो अब मुझे बाय करना पड़ेगा ना, वो तो आप दे देंगे तो फ्री में कर लूंगा, ये तो मेरे पास अभी एक ही चांस था इसको। वो भी सिर्फ 5 कूपन देगा, मैं आपको भेज दूंगी, कोई मसला नहीं, आप गूगल सर्च कर लो ऐप यूनी। ओके, ठीक है। एंड करें? चलो ठीक, ओके। सॉरी। एंड जी, एंड करें। करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक जी ये जी। तीन चीजें ओके, प्रैक्टिस करें, थैंक फिर मुझे बताएं क्या अपडेट है। ओके ओके, थैंक यू।